السلام علیکم. آپ جیسے کہ جانتے ہیں آج سے 2 دن کے بعد اس حلقہ یعنی 239 میں اور 237 میں ضمنی انتخابات ہو رہے. پاک زمین پارٹی کے 2 امیدوار ہیں حلقہ NA-237 سے. ہمارے عامر بھائی ہیں, عامر شیخانی صاحب ہیں, یہ میری لیفٹ پہ کھڑے ہیں. حلقہ 239 سے شارد جمال صاحب ہیں, یہ ہمارے میرے رائٹ پر کھڑے ہیں. پاک زمین پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کراچی کے مسائل کو جتنی اچھی طرح سے ہم سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں, اور جس طرح سے ہم نے پہلے بھی اس شہر کو بنایا تھا, چلایا تھا, اس شہر کو ہم دوبارہ اس پستی سے, دنیا کے 4 بدترین رہنے والے شہروں میں شمار جس کو کر دیا گیا ہے, اس کراچی کو اس پستی سے نکال کر دوبارہ ہم روشنیوں کا شہر, ترقی کا شہر, انسانوں کے رہنے کے قابل شہر ہم بنا سکتے ہیں. اگر ہم ایسا کہہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اس بات کے کرنے کا ثبوت موجود ہے. ہمارا ماضی, ہمارے آنے والے دنوں کی گواہی ہے. کراچی کی گلیاں, کراچی کی سڑکیں, کراچی میں 2005 سے 2010 میں ہونے والے کام اس نسل اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہماری اس بات کی تائید ہے کہ ہم اگر کہہ رہے ہیں ایسا تو ہم ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں. ہم نے کراچی کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کرا دیا تھا. اس شہر میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی, اس شہر میں روزگار بڑھ رہا تھا, اس شہر میں انڈسٹریز بڑھ رہی تھی. اس شہر میں جہاں کئی دہائیوں سے نلکوں میں پانی نہیں گیا تھا, وہاں پر نلکوں میں پانی آنے لگا تھا. اس شہر میں ٹینکر آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جا رہے تھے, اس شہر کا کچرا اٹھتا تھا. اس شہر کی سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی, اس شہر کا ٹریفک نظام صحیح ہو گیا تھا. لوگ گھنٹوں کا سفر ہمارے بنائے ہوئے انڈر پاسز, فلائی اوورز اور سگنل فری کوریڈورز پر منٹوں میں, گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کرنے لگے تھے. اس شہر میں نئی CNG بسیں چلنا شروع ہو گئی تھی. اس شہر میں کہ اسپتال مریضوں کا علاج کر رہے تھے, ڈاکٹرز موجود ہوتے تھے, دوائیں ملتی تھی. اس شہر کے تعلیمی ادارے بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے. آج یہ شہر مایوسی کی دلدل میں دھنس گیا ہے. ایسے حالات میں وہ لوگ جنہوں نے اس شہر کو اس نہج پر پہنچایا ہے, وہ اس شہر کا مداوع کیسے کر سکتے ہیں؟ جن ڈاکٹروں کے غلط علاج کی وجہ سے, غلط دواؤں کی وجہ سے یہ شہر بیمار ہو گیا, وہی ڈاکٹر اس کا علاج انہی دواؤں سے کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو 2018 میں مینڈیٹ ملا یا دیا گیا, جو کچھ بھی ہے, 14 سیٹیں لے کر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے. وزیر اعظم بننے کے بعد 4 سالوں میں صرف 8 دفعہ یہاں تشریف لاتے ہیں. 2 دفعہ انہوں نے اس شہر کو ڈیولپ کرنے کے لیے, ایک دفعہ 176 ارب روپے اور ایک دفعہ 1100 ارب روپے کا پیکج دیا. اس میں سے 1 روپے ایک پروجیکٹ نہیں آیا. اس شہر میں 2018 کے الیکشن سے پہلے جو حالات تھے, آج ان 4 سالوں میں وہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. PTI کے دوستوں سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ 4 سال گزر گئے کہ یہ صوبے میں 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سک رہے. تو کیا اب الیکشن لڑنے آ رہے ہیں تو کیا 18ویں ترمیم ختم ہو گئی ہے؟ اب 18ویں ترمیم نہیں ہے. اور کیا آپ آ کے 18ویں ترمیم ختم کرا سکتے ہیں؟ اور آج تو PTI کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ الیکشن جیت کر
9 की 9 सीटों पर इलेक्शन वो अकेले लड़ रहे, वो है नुमाइंदे, वो ये जीत कर इलेक्शन रिजाइन कर देंगे, वो इस्तीफा दे देंगे। ये बात शायद पंजाब में अगर की जाए, ये सियासत अगर पंजाब में की जाए तो शायद लोग, पंजाब के लोग इसको एक्सेप्ट कर लें, मान लें, क्योंकि पंजाब कराची से बहुत आगे जा चुका है, तरक्की कर चुका है, हमें खुशी है इस बात की। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे खून पसीने का कमाया हुआ पैसा भी पंजाब की तरक्की में शामिल है। हम 70% रेवेन्यू कमा कर शहर दे देते हैं पाकिस्तान के लिए। तो अगर पंजाब तरक्की कर रहा है और बहुत तरक्की कर गया है, हमसे कई दहाइयां आगे निकल गया है, तो हमें इस बात की खुशी है, लेकिन हमारी तरफ भी नजर करम हो। लेकिन अगर ये पंजाब में की जाए बात कि हम जीतने के बाद इस्तीफा दे देंगे, तो ठीक, लोग शायद इसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन वो शहर जो अपने हकीकी नुमाइंदों को तरस रहा है, जो हकीकी नुमाइंदगी को तरस रहा है, जो शहर की चौकीदारी के लिए तरस रहा है, जो शहर की वकालत के लिए तरस रहा है, जो पीने के पानी से महरूम है 90% शहर, जहां पर सड़कें एक भी साबित नहीं है, जहां पर रात में लाइट नहीं है, सुबह गैस नहीं है, जहां पर तालीम का कोई इदारा नहीं काम कर रहा, काबिल कदर गवर्नमेंट का इदारा, जहां पर 2.5 लाख नौकरियां दी गई है सरकारी, एक नौकरी शहर से नहीं है, एक नौकरी हैदराबाद से नहीं है, जहां पर अब मोबाइल छीनने वाला डाकू सिर्फ मोबाइल नहीं छीन रहा, वो बंदे भी मार कर जा रहा है, वो लोगों को कत्ल भी कर जा रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है उस पर। जिस शहर में पुलिस का चीफ बैठ कर कहे कि कराची वाले अपने दुखों का रोना बहुत ज्यादा रोते हैं, इतने गम है नहीं जितना शोर कराची वाले मचाते हैं। कराची वालों के शोर मचाने की वजह से इन्वेस्टमेंट जा रही है, ये कोई और नहीं, कराची का चौकीदार जो चीफ है, पुलिस चीफ है, वो बैठकर बिजनेस कम्युनिटी के सामने ये वाली बात कह रहा है, कैमरों के सामने ये वाली बात कह रहा है। उसको कराची वालों का रोना भी पसंद नहीं है कि भाई मर रहे हो तो मरकर खामोशी से दफन क्यों नहीं हो रहे, उस पर गिरियाजारी क्यों कर रहे हो, उस पर रो क्यों रहे हो, उसको ये रोना पसंद नहीं है। अभी पीपल्स पार्टी के एक वजीर ने साफ साफ कहा कि कराची के लोग इस तरक्की की राह में रुकावट है, खुला तासुब का मुजाहरा कर रहा है। तो ऐसे मौके पे यहाँ के हकीकी नुमाइंदे चाहिए, यहाँ पर हकीकी लोग चाहिए जो आकर नुमाइंदगी करें, उस जगह पे उस मौके पे आकर कोई सियासत ये करे कि हम पूरे पाकिस्तान से एक ही नुमाइंदा है, 2 सीटों पे इमरान खान साहब खुद नुमाइंदे हैं और वो ऐलान कर चुके हैं कि वो जीतने के बाद रिजाइन कर देंगे। तो ये लोग, ये कराची के लोग, हम सियासत की नजर हो जाएं, हम इनकी सियासत की नजर हो जाएं। हम बड़े एहतराम से ये बात कह रहे हैं, आपकी सियासत अपनी जगह। देखिए कराची के लोगों से मैं मुखातिब हूँ, ए शाह फैसल मलीर के लोगों, ए मलीर कैंट के रहने वाले लोगों, सपूरा गोट के लोगों, गुलिस्तान जौहर के लोगों, मैं दोनों हल्का NA 237 और NA 239 दोनों हल्कों के रहने वाले कराची के लोगों से मुखातिब होकर यह कहना चाहता हूं कि देखिए, जो पार्टी बाहर से आकर जिसका लीडर यहां पर इलेक्शन लड़ रहा है, उसको पाकिस्तान का वजीर आजम बनना है। पाकिस्तान का वजीर आजम बनने के लिए असेंबली में 172 सीटें चाहिए। कराची की सारी सीटें मिलाकर सिर्फ 21 सीट बनती है। कराची की सारी सीटें भी उनको मिल जाएं तो वो वजीर आजम के कैंडिडेट नहीं बन सकते। वजीर आजम बनने के लिए कोई भी बनना चाहता है, उसे पंजाब जीतना बहुत जरूरी है, जहां पर 250 सीटें हैं। सिर्फ GT रोड पर 96 सीटें हैं। तो जो वजीर आजम पंजाब जीत कर वजीर आजम बन जाता है, फिर कराची के वोटों की अहमियत नहीं रह जाती। कराची का वोट उसके लिए चेरी ऑन द केक वाली बात है। कराची का वोट उसके लिए अपने केक को सजाने के लिए चाहिए, अपने ताज में अपनी ताज में नगीने लगाने के लिए चाहिए उसको। ताज जो कि वो वजीर आजम का ताज जब पहनता है तो उसमें कराची का नगीना चाहिए, इसके लिए चाहिए पूरा ताज। यहां से नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ की सीटें सिर्फ 21 हैं, उसको 172 सीटें चाहिए और वो पंजाब जीते बगैर वो वजीर आजम बन नहीं सकता। और एक दफा जब वो पंजाब से जीत कर वजीर आजम बन जाता है, वो कराची को पलट कर नहीं देखता। मुस्तफा कमाल ने, उसके लोगों ने यहीं रहना है,
यहीं दफन होना है, बच्चे यही हैं, वालिदैन की कब्रें यही हैं। हमने इस शहर को अपने हाथों से बनाया है। हमें, अगर तुम्हारे घर पे लाइट जाती है तो मेरे घर पे भी लाइट जाती है। अगर तुम्हारे घर पे पानी नहीं आता कराची वालों तो मेरे घर पे भी पानी नहीं आता। अगर तुम्हारी गाड़ियां सड़क टूटी फूटी सड़कों पर चल रही हैं तो मैं भी इस्लामाबाद की पुरफजा मकाम में नहीं रहता, मेरी भी गाड़ी टूटी फूटी सड़कों पर चलती है। अगर तुम ताफून और गंदगी और कचरे से गुजरते हो, मैं और मेरे बच्चे भी ताफून और गंदगी और कचरे से गुजरते हैं। जो तुम्हारा मसला है वो मेरा मसला है, मेरे बच्चों का मसला है, मेरे खानदान का मसला है, इन कैंडिडेट का मसला है, इनके घर वालों का मसला है, मेरे कारकुनान का मसला है, मेरे जिम्मेदारों का मसला है। तो और हम वो लोग हैं जिनके पास किरदार है, जिनके पास लेगेसी है, काम की कारकर्दगी भी है और किरदार भी है। हमने ये कराची बगैर हराम कमाए, बगैर रिश्वत कमाए, बगैर प्लॉट घेरे, बगैर शादी हॉल और बगैर पेट्रोल पंप के प्लॉट को घेरे बगैर 300 अरब रुपए, 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए अपने हाथों से। आज मेरा दुश्मन भी 1 रुपए हराम कमाने चोरी करने का इल्जाम नहीं लगा सकता। ये किरदार किसी पार्टी के पास नहीं है, कोई नहीं दावा कर सकता पब्लिकली। 10 साल हो गए मुझे इस ओहदे को छोड़े हुए, आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर एक उंगली नहीं उठा सकता। इस किरदार और इस कारकर्दगी के साथ मेरे ये 2 नुमाइंदों को मैंने खड़ा किया, ये मेरे नुमाइंदे हैं। मुस्तफा कमाल इनकी गारंटी लेता है, मुस्तफा कमाल इनकी गारंटी लेता है। तुम शायद इनको नहीं जानते हो, कम जानते हो। तुमने मुझे तो रातों में काम करते हुए देखा है, तुमने मुझे तो रातों में सड़कों पर जागते हुए देखा है, तुमने मुझे तो जब तुम सोते थे कराची में, मैं तुम्हारी सड़कों पर, तुम्हारी गलियों में, कौन सा मोहल्ला ऐसा है जहां पर मैंने रातें जाग कर नहीं गुजारी। तो तुम मेरे कहने पर पाक सरजमीन पार्टी के इन दोनों नुमाइंदों NA 237 में, आमिर शेखानी भाई को और NA 239 में शारिक जमाल को आप डॉल्फिन पर मोहर लगाकर इतवार वाले दिन कामयाब बनाइए। पाकिस्तान की सियासत एक तरफ, हमें एक चौकीदार बनाइए, हमें ये मैंडेट दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको फिर जलसा नहीं करने के लिए बुलाऊंगा, मैं आपको तकरीर नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको रैलियों में नहीं बुलाऊंगा, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा NA 237, 239 के लोगों कि मेरे पास, मेरे आदमी के पास इख्तियार नहीं है। मैं आपसे इन कैमरों के आगे वादा करता हूं कि एक दफा ये मैंडेट हमारे पास हो, फिर हमें इस इख्तियार को अपना इस्तेमाल करना भी आता है और जिसके पास इख्तियार है उससे छीनना भी आता है। और हम ऐसा करके दिखा चुके हैं और दोबारा करेंगे, क्योंकि हमारे पास किरदार है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई हमारी ऑडियो वीडियो दिखाकर हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अल्लाह का शुक्र है, हमारे कोई शादी हॉल को गिराने की धमकी देकर हमें हक बात कहने से नहीं रोक सकता। मेरे किसी प्लॉट को जाकर कब्जा करने जाए, मेरे रिश्तेदारों के प्लॉटों को कब्जा करने जाए, है ही नहीं, तो हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके आज के दिन से बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरे इन 2 नुमाइंदों को आपने वोट दिया, अगर डॉल्फिन पे मोहर लगाया, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। एक हम रातों में जागकर आपकी खिदमत करेंगे। आप अपने घरों में सोना और मैं और मेरे कारकुनान और मेरे ये नुमाइंदे आपकी सुबह को बेहतर बनाने के लिए आपकी रातों को जागकर आपकी खिदमत करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये इख्तियार हमारे पास है, ये इख्तियार हमारे पास नहीं है। वोट देने के बाद हम ये नहीं कहेंगे। जो इख्तियार इनके पास होगा उसे इस्तेमाल करेंगे, और चूंकि आपने मैंडेट दे दिया होगा तो आपके मैंडेट को लेकर जिसके पास इख्तियार है और वो काम नहीं करो, उसके इख्तियार हम छीनेंगे, उससे हम इख्तियार छीनेंगे। तो मेरी आप तमाम रहने वालों से, देखिए हमारे पास ATM मशीन नहीं है, हमारे पास इश्तिहार चलाने के लिए बहुत पैसे नहीं है, हमारे पास तो हमारा किरदार है, हमारे पास तो हमारी कारकर्दगी है, और इस कारकर्दगी और किरदार से हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ की जो दूसरी जमात है वो तो उसके पास आज भी वो हुकूमत में है, वो इससे पहले भी हुकूमत में थी, इस वाली हुकूमत में भी शामिल है, पहले वाली हुकूमत में भी वो शामिल थे, अभी भी आज भी उनके वजीर हैं, इससे पहले भी वजीर थे, और उनके पास इस टाउन की डिस्ट्रिक्ट यहाँ की वो डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रहे हैं, इस शहर के मेयर रहे हैं, वो MPs MNAs रहे हैं। 40 सालों से चलता आ रहा है सारा सिलसिला, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अगर कुछ कर पाते तो मलिक की, शाह फैसल की और सबूरा गोट और गुलिस्तान जौहर की गलियों के हालात ये मंजर पेश ना कर रहे होते जो आज ये मंजर पेश हो रहा है।
تو میں آخری بات یہ کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اے مظلوموں، جو تم پر یہ ظلم ہو رہا ہے حکمران، ظالم حکمران کی طرف سے، تو آج یہ بات میری کان کھول کر سن لو کہ اگر تم نے اپنے اوپر ہونے والے اس ظلم کا بدلہ نہیں لیا اور ووٹ نہیں دیا اور خاموشی اختیار کر لی یا غلط نعروں کے پیچھے چلے گئے، تو یقین جانو پھر ظالم جو کہ حکمران ظلم کر رہا ہے وہ ظالم نہیں ہے، تم سب ظالم ہو، تم سب جو مظلوم ہو، جو کہ خاموش اور غلط رستے پر جا رہے ہو، وہ بھی ظالم ہے، وہ اپنے بچوں کا قاتل ہے۔ پھر کوئی باہر والا قاتل نہیں ہے، پھر کوئی ہمارے بچوں کو گٹر ملا پانی باہر والا نہیں پلا رہا، ہم خود اپنے بچوں کو گٹر ملا پانی پلانے والے کو منتخب کر رہے ہیں، ہم خود اپنے بچوں کو نالوں میں گر کر مرنے والوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم خود اپنے اوپر کرپشن زدہ لوگ مسلط کرنے والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ہمارا کام آواز لگانا ہے، یہ آواز لگانے والے کامیاب ہیں، یہ آواز لگانے والے کامیاب ہیں۔ ہم تو کامیاب ہیں کیونکہ ہم نے آواز لگا دی، اب لوگوں کیوں کریں کہ اگر لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ہماری آواز پر لبیک کہنا پڑے گا، ان کو ہماری آواز پہ لبیک کہنا پڑے گا۔ پاک سے زمین پارٹی نے اس پریس کانفرنس کے بعد ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا، کیونکہ آج الیکشن کی کیمپین کی یہ آخری لمحات ہیں 12 بجے تک، تو یہاں سے یہ ریلی نکلے گی، اپنے مقررہ روٹ سے ہوتے ہوئے شاہ فیصل پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ عظیم الشان ریلی یہاں سے روانہ ہوگی اور ہم اپنی پاور شو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ لوگوں کی حمایت کس کے ساتھ ہے، کارکنوں سے، ذمہ داروں سے، تمام ہمدردوں سے جو اس ریلی میں شریک ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ بہت ڈسپلن کے ساتھ انہوں نے ریلی میں چلنا ہے۔ جو سڑک پر ٹریفک دوسری چل رہی ہے ان کو رستہ دینا ہے اور کہیں رکنا نہیں ہے، پیدل نہیں اترنا، ٹریفک بلاک نہیں کرنا ہے، تیز نکلنا ہے تاکہ پیچھے کا ٹریفک کا فلو جو ہے وہ نہیں بند ہو، اور کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی گاڑی بغیر فلیگ کے، بغیر جھنڈوں کے نہ چلے۔ اگر وہ جھنڈے کے بغیر ہیں تو ان کو ریلی میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ جو یہاں پر ہماری کوریج کے لیے آئے، بہت شکریہ۔